بجٹ پیش کرنے کے دوسرے سیکنڈ ڈے ہم آپ لوگوں کو پوسٹ بجٹ بریفنگ دیتے ہیں، پھر سوالات جوابات کا سلسلہ ہوتا ہے۔ الحمدللہ یوں تو بلوچستان عوامی پارٹی اور اس کی اتحادی جماعتوں کا یہ چوتھا بجٹ ہے، لیکن حکومت کی تبدیلی کے بعد میر عبدالقدوس بزن جو چیف منسٹر بنے اور اس نوزائیدہ حکومت کا جو کہ جس کی عمر ٹوٹل 8 مہینے ہے، پہلا بجٹ ہے۔ قائد ایوان میر عبدالقدوس بزن جو کی ایک عوام دوست پالیسی کہ نہ تو سڑکوں پر کوئی احتجاج ہوا، نہ اسمبلی کے اندر احتجاج ہوا، ہر ممبر، کل آپ نے دیکھا جام صاحب شاید کچھ فلائٹ وغیرہ کینسل ہوئی یا جو بھی سلسلہ ہوا، سردار یار محمد سے لے کر باقی اپوزیشن کے اور ہمارے ٹریجری بینچز کے، مطلب ہے ایک نواب اسمبلی ریسانی صاحب کی اپلیکیشن چھٹی کی پڑی گئی، باقی تمام عوام موجود تھا۔ اور الحمدللہ آپ نے دیکھا کہ میں نے بجٹ پیش کیا، اور ایک روایت ہمارے قائد ایوان میر عبدالقدوس بزن جو نے قائم کی ہے کہ ہر پارلیمنٹیرین قابل احترام ہے، وہ بھی ہماری طرح منتخب ہو کے آتا ہے، اور اس کا جائز عزت اور جائز مقام دیا جائے، جس کا مظاہرہ انہوں نے اپنے پہلے بجٹ میں کیا، اور آپ نے دیکھا کہ کس طریقے سے بخیر و خوبی ہم بجٹ پیش کر سکے۔ اس وقت میں تھوڑا سا بجٹ کے بارے میں گزارش کروں گا، پھر ہم سوالات جوابات کا سلسلہ شروع کریں گے۔ معزز صافی حضرات، موجودہ صوبائی حکومت نے اپنے قائد میر عبدالقدوس بزن جو کی قیادت میں اپنا پہلا اور صوبے کا تاریخی بجٹ پیش کیا ہے، جس کے دور رس نتائج اور مثبت اثرات عام آدمی کی زندگی پر مرتب ہوں گے اور اس کا معیار زندگی بہتر ہوگا۔ یہ صحیح معنوں میں صوبے کی تقدیر بدلنے کی جانب حکومت کی سنجیدہ کوشش ہے، جس کا مشاہدہ عوام خود کریں گے۔ ہم نے اس بجٹ کے ذریعے معاشی اور اقتصادی ترقی کی جانب پیش رفت کا آغاز کیا ہے۔ مجھے یقین ہے کہ آپ سب نے بھی بجٹ کا مطالعہ کیا ہوگا۔ ہماری ہمیشہ سے یہ کوشش رہی ہے کہ زندگی کے ہر طبقہ سے تعلق رکھنے والے افراد، خاص طور سے میڈیا سے رہنمائی حاصل کی جائے تاکہ ہم اپنی کوتاہیوں اور خامیوں کو درست کر سکیں۔ مجھے امید ہے کہ آج آپ اپنے سوالات کے ذریعے ہماری بہتر رہنمائی کریں گے۔ یہ ایک متوازن اور عوامی بجٹ ہے جس میں کوئی بھی نیا ٹیکس عائد نہیں کیا گیا ہے، جس کی تیاری میں عوام کی امنگوں اور امیدوں کو مد نظر رکھا گیا ہے۔ سرکاری ملازمین، مزدور اور کاروباری طبقہ غرض کے ہر شعبہ زندگی کی ترقی اور فلاح و بہبود کے اقدامات کا بجٹ کا حصہ ہیں۔ مجھے انتہائی خوشی ہے کہ یہ پہلا بجٹ ہے جس کے پیش کیے جانے کے موقع پر کسی بھی شعبہ کی جانب سے اسمبلی کے سامنے کوئی احتجاج یا دھرنا نہیں تھا، جس کے مطلب ہے کہ عوام اور اس کی پالیسی پر مکمل اعتماد رکھتے ہیں، جو کسی بھی سیاسی اور جمہوری حکومت کے لیے قابل فخر ہے۔ بجٹ کی خاص بات یہ ہے کہ گزشتہ ادوار کی طرح ذاتی پسند اور ناپسند کی بجائے تمام اضلاع کو یکساں اہمیت دی گئی ہے، اور ترقیاتی پروگرام میں صرف عوامی نمائندوں کی تجاویز پر ترقیاتی منصوبے شامل کیے گئے ہیں، اور ذاتی دوستوں اور غیر منتخب لوگوں کو بجٹ سے دور رکھا گیا ہے۔ میرے ساتھ ایڈیشنل چیف سیکرٹری صاحب سلمان سر اور سیکرٹری خزانہ حافظ بٹ سر بھی موجود ہیں، تاکہ آپ کے ذہن میں بجٹ سے متعلق کسی بھی سوال کا تسلی بخش جواب دیا جا سکے۔ میں آپ کے سامنے بجٹ کے چند اہم نکات پیش کرتا ہوں، جن میں وہ میگا پروجیکٹ بھی شامل ہیں جنہیں وزیر اعلیٰ کے ویژن کے تحت ترقیاتی پروگرام کا حصہ بنایا گیا ہے، جن پر عمل درآمد سے معاشی اور سماجی انقلاب آئے گا۔
सन 2022-23 का कुल बजट तखमीना 612 अरब 79 करोड़ रुपए है, जिसमें गैर तरक्याती बजट का हुजम 367 अरब रुपए, मजबूरी सूबाई तरक्याती बजट जिसको PSDP कहते हैं 191 अरब 51 करोड़ रुपए, डेवलपमेंट ग्रांट्स जो फेडरल फंडेड प्रोजेक्ट्स की मद में हमें मिलेंगी 28.3 अरब रुपए और फॉरेन प्रोजेक्ट्स असिस्टेंट FPA की मद में 14.6 अरब रुपए सूबाई तरक्याती प्रोग्राम के अलावा है। जारी तरक्याती स्कीमों की कुल तादाद 3,367 जिनके लिए 133 अरब रुपए मुख्तस किए गए हैं। नई तरक्याती स्कीमों की कुल तादाद 3,470 जिनके लिए 59 अरब रुपए मुख्तस किए गए हैं। माली साल 2022-23 में बलूचिस्तान के नौजवानों के लिए 2,850 असामियाँ तख्लीक की गई हैं। मैं माली साल 2022-23 अखराजात के बजट का ये तो हो गया, आप वो मेगा वो मैं ये आपके मेगा प्रोजेक्ट मुझे दे दो। अब कल जो हमने बजट पेश किया, बजट तकरीर में कुछ हमारी वो प्रिंटिंग में थे ये PSDP, तो कुछ हम मेगा प्रोजेक्ट्स का उसमें जिक्र नहीं कर सके। मिसाल के तौर पर एग्रीकल्चर प्रोडक्टिविटी इन्हेंसमेंट थ्रू प्रोविजन ऑफ एग्रीकल्चर बोर्ड्स एट जाहू अराउंड 500 मिलियन के ये हम कर रहे हैं। कंस्ट्रक्शन ऑफ नाग रोड टू वाशुक ये 1,000 मिलियन 1 अरब रुपए का है। इसी तरीके से इंटर्नशिप प्रोग्राम हमने शुरू किया है। जो प्रोफेशनल ग्रेजुएट होंगे जब तक कि उनको मुलाजमतें मिलेंगी तो हम उनको इंटर्नशिप देंगे, उस पे हमारे 500 मिलियन रुपए खर्च होंगे। लैपटॉप हम बच्चों को प्रोवाइड करेंगे ताकि जदीद तकाज़ों के मुताबिक वो अपनी तालीम को आगे बढ़ा सकें। ये एक इनकलाबी चीज़ होगी। इसके लिए हमने 1 अरब रुपए रखे हैं, 1,000 मिलियन। अच्छा, कोस्टल हाईवे को हम महफूज रखने के लिए और हाईवे की सिक्योरिटी के लिए हमने तकरीबन 795 मिलियन रुपए रखे हैं। छोटे डैम वाटर शेड मैनेजमेंट कोयटा के आसपास, ताकि कोयटा का जो पानी का मसला है ये भी हो और थोड़ी सी ग्रीनरी भी पैदा हो, क्योंकि पहले कहते थे कि कोयटा हमेशा इसको लिटिल लंदन के नाम से पुकारा जाता था, लेकिन आबादी इतनी बढ़ गई तो और पानी का लेवल इतना नीचे चला गया खुशहाली की वजह से, ये वो चीज़ नहीं रही। तो 1 अरब रुपए हम कोयटा के आसपास डैम, समाल डैम्स और वाटर शेड बना के, ताकि एक तो वाटर लेवल हमारा थोड़ा सा अप हो जाए, पीने का पानी का मसला हल हो जाए, और दूसरा हमें जब भी कोई नया इस तरफ कोयटा की तरफ आए जो कि बलूचिस्तान का दिल है, तो कम से कम उसको पहाड़ों पर सब्जा और एक खूबसूरती का मंजर नज़र आए। जी। और एक प्रोजेक्ट हमने ये किया है कि क्योंकि बिजली की शॉर्टफॉल बहुत ज़्यादा हो गई है पूरे मुल्क में, ख़ास करके बलूचिस्तान में काफ़ी परेशानी का बायस बनती है, तो हम कोशिश कर रहे हैं कि जो पीने की पानी की स्कीमें जितनी भी हैं बलूचिस्तान में, उनको हम सोलर सिस्टम पर मुंतकिल करें ताकि लोगों को पीने के पानी की तकलीफ़ ना हो। तो उसके लिए भी हमने 1 अरब रुपए रखे। तो ये चंद कुछ चीज़ें थी। बाकी बड़े डैम भी है इसमें, मांगी डैम है प्रोजेक्ट है, गोरख डैम है, दरगई शबोजई रोड है, इस टाइप की प्रोजेक्ट हमारे। और फिर हम तो नहीं कहेंगे, लेकिन ये जो अब हमने बजट पेश किया है इसका असर बलूचिस्तान के कोने कोने में पहुंचेगा इंशाअल्लाह। और बहुत सारी चीज़ें नई हमने इंट्रोड्यूस कराई और हम इंट्रोड्यूस कराने जा रहे हैं, वो वक्त के साथ साथ हम आपके साथ शेयर करेंगे। मुलाजमीन के मसाइल हम हल कर रहे हैं, ख़ास करके CNW के 361 मुलाजमीन इंशाअल्लाह 2-3 दिन में हम उनको अपॉइंटमेंट लेटर दे रहे हैं। SDO साहबान थे, पब्लिक सर्विस कमीशन से होकर आए,
50 के करीब हमने वो दे दिए। डॉक्टरों को हम एडॉक बेसिस पे ले रहे हैं, कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पे ले रहे हैं। एजुकेशन के सिलसिले में हम कोशिश कर रहे हैं कि इनकलाबी इक़दाम लाएँ। इस बजट में भी हमने मिसाल के तौर पर मेरे हल्के में 20 करोड़ रुपए की लागत से इंटर कॉलेज रडगन बारखान वो कायम किया जा रहा है। इसी तरीके से हमारे जो अकाबरीन थे, कल हमने बजट तकरीर में भी कहा कि हम वो इस दुनिया से तो रुखसत हो गए, लेकिन हम उनकी रूह को, उनकी खिदमत को हम ज़िंदा रखना चाहते हैं। और ये बलूचिस्तान में पहली दफ़ा मीर अब्दुल क़ुद्दूस विज़ेंजो का विज़न है कि हम अपने अकाबरीन को, चाहे वो सूबे के लेवल पे हैं या पाकिस्तान लेवल पे हैं, हम उनका नाम ता क़यामत ज़िंदा रखें, सीना पे सीना ये नाम चले, उनकी खिदमत का जो वसी तजर्बा और दायरा है वो सीना ब सीना लोगों में मुंतकिल हो। तो वो भी हमने उनके नाम से बहुत सारे इदारों को, बहुत से मंसूबों को मंसूब किया है। इंशाल्लाह आप देखेंगे कि वो भी एक भाईचारे और एक अपने बुज़ुर्गों का, काबरीन का एहतराम, वो इन चीज़ों में आपको झलक नज़र आएगी। महदूद वसाइल हैं बलूचिस्तान के। हम समझते हैं कि गो कि डेफिसिट बजट है, लेकिन ये भी मैं बताता चलूँ कि पिछले साल 87 अरब रुपए का खसारा बजट था। हम उसमें अपोजिशन के लोगों को, हल्कों को, उनके अजला को मालूम रखा गया। हमने इस दफ़ा 72 बिलियन पे उसको ले आए खसारे को। 15 बिलियन हमने कम किया खसारा। और उसके साथ साथ जो हमने अचीवमेंट की है कि तमाम हल्के, 51 हल्के हैं हमारे सूबाई असम्बली के और स्पेशल सीटों के साथ 65 का ऐवान बनता है। अल्हम्दुलिल्लाह आप देखेंगे कि कोई किसी को हमने शिकायत का मौका नहीं दिया है कि आपके साथ सौतेली माँ जैसा सलूक किया गया है। ये बहुत बड़ी एक कायदाना अचीवमेंट है जो कि मीर अब्दुल क़ुद्दूस विज़ेंजो फिर उसके हम साथी हैं, ये उस टीम का मैं समझता हूँ कि एक बहुत बड़ा कारनामा समझे या अचीवमेंट समझें। हमारी PSDP में 6,812 प्रोजेक्ट थे ऑनगोइंग में, जिनमें से 3,367 ऑनगोइंग प्रोजेक्ट और 3,445 नए प्रोजेक्ट थे। टोटल 21-22 में 1,238 प्रोजेक्ट हमने मुकम्मल किए, 4,605 में। इसकी सीधा बातें मैं आपको गोशगुजार करूँ कि हमने अब जो ऑनगोइंग है उसको 69% मतलब 70% हम उनको एलोकेशन हमने किया है ताकि वो प्रोजेक्ट किल हो जाए, इसी साल में मुकम्मल हो जाए। इसके साथ साथ छोटे जो प्रोजेक्ट थे हमारे उनको हमने 100% एलोकेशन दिए है ताकि वो भी, क्योंकि रोज़ महंगाई बढ़ रही है तो वो हमारे लिए एक परेशानी का बायस भी बनते हैं और हमारे बजट पर भी असरअंदाज होते हैं। हमारा थ्रो फॉरवर्ड 366.05 था। शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह के एलोकेशन करने के बाद वो हमारा थ्रो फॉरवर्ड वापस 326 पर बिलियन 326.34 बिलियन पर आ जाएगा। मतलब 40 अरब रुपए हम उसमें भी वो कर रहे हैं कि वो जो कमी कर रहे हैं। तो ये सीधा चीज़ें थी जो मैं आपके गुज़ार करना चाहता था। अब मेरे ख्याल में हम सवाल जवाब